Students, subscribe to my channel Muhammad Muzaffar Bhatt to learn English. Muhammad Muzaffar Bhatt. Subscribe. Dear students, today I will give you the explanation of the third chapter of your Flamingo textbook, Deep Water by William Douglas. In the first part, we will start from the page number 23, first para. It had happened when I was 10 or 11 years old. I had decided to learn to swim. There was a pool at the YMCA in Yakima that offered exactly the opportunity. मैंने यानी विलियम ओ डोगलस 10 या 11 साल का था। मैं यानी विलियम ओ डोगलस 10 या 11 साल का था जब ये वाक़ा रोनमा हुआ। मैंने तैराकी सीखने का फैसला किया। YMCA यानी यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन नामी अंजुमन जो याकीमा में है के पास एक तालाब था। ये अंजुमन तैराकी सिखाने का मौका फराहम करती थी। The Yakima river was treacherous. Mother continually warned against it and kept fresh in my mind the details of each drowning in the river, but the YMCA pool was safe. इस दरिया में मेरी माँ मुझे मुतवातिर इस दरिया के खतरात से खबरदार करती थी और इस दरिया में होने वाले हादसात की याद दिलाती रहती थी, लेकिन YMCA का तालाब महफूज था। It was only 2 or 3 feet deep at the shallow end, and while it was 9 feet deep at the other, the drop was gradual. I got a pair of water wings and went to the pool. I hated to walk naked into it and show my skinny legs, but I subdued my pride and did it. ये एक सिरे पर सिर्फ 2 या 3 फुट गहरा था और दूसरे सिरे पर 9 फुट और ये गहराई हल्की हल्की बढ़ जाती थी, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाती थी। मैंने वाटर विंग्स का एक जोड़ा हासिल किया और तालाब में तैरने के लिए चला गया। मुझे तालाब में नंगे होकर चलने से नफरत थी और मैं किसी को अपनी पतली टांगें दिखाना नहीं चाहता था, लेकिन मैंने अपने घुमंड पर काबू पा लिया और अपने कपड़े उतार दिए। From the beginning, however, I had an aversion to the water when I was in it. This started when I was 3 or 4 years old and father took me to the beach in California. मुझे बचपन से ही पानी में दाखिल होने से बहुत नफरत थी। ये 3 या 4 साल की उम्र से शुरू हुआ जब मेरे वालिद मुझे कैलिफोर्निया के साहिल पर ले जाता था। वो और मैं समुद्री जहाज में इकट्ठे रहते थे। मैं उससे चिमट जाता था, फिर भी लहरें मुझे नीचे टपक देती थी और मेरे ऊपर से निकल जाती थी। He and I stood together in the surf. I hung on to him, yet the waves knocked me down and swept over me. I was buried in water. My breath was gone. I was frightened. Father laughed, but there was terror in my heart at the overpowering force of the waves. मैं अपने वालिद से चिमट जाता था, फिर भी लहरें मुझे नीचे टपक देती थी और मेरे ऊपर से निकल जाती थी। मैं डर जाता था। मेरे वालिद हंसते थे, लेकिन मेरा दिल लहरों के ज़बरदस्त ताकत को देखकर खौफ से भर जाता था। My introduction to the YMCA swimming pool revived unpleasant memories and stirred childish fears. But in a little while I gathered confidence. I paddled with my new water wings, watching the other boys and trying to learn by apping them. I did this 2 or 3 times on different days and was just beginning to feel at ease in the water when the misadventure happened. YMCA के स्विमिंग पूल के साथ मेरे तारुफ ने बचपन की तलख यादों को ताज़ा किया और मेरे बचपन के खौफ को फिर से बेदार किया। लेकिन थोड़ी देर में मैंने अपने भरोसे को इकट्ठा किया। मैं अपने नए वाटर विंग्स की मदद से पानी में पाँव मारने लगा। मैं दूसरे लड़कों को देखकर और उनका नकल करके सीखने की कोशिश कर रहा था। मुख्तलिफ दिनों में 2 या 3 बार मैंने ऐसा किया और मैं अभी पानी में अपने आप को महसूस कर रहा था कि एक बुरा हादसा पेश आया। I went to the pool when no one else was there. The place was quiet, the water was still, and the tiled bottom was as white and clean as a bathtub. I was timid about going in alone, so I sat on the side of the pool to wait for others. एक दिन मैं पूल में गया जब वहाँ कोई दूसरा नहीं था। जगह पुरसुकून थी, खामोश थी, पानी साकिन था और पूल का फर्श जो कि टाइलों का बना हुआ था बहुत ही शफाफ और साफ दिखाई दे रहा था। मैं पानी में अकेले जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था, लिहाजा मैं पूल के एक तरफ में बैठ गया और दूसरे लड़कों के आने का इंतज़ार करने लगा। I had not been there long when in came a big bruiser of a boy, probably 18 years old.
He had thick hair on his chest. He was a beautiful physical specimen with legs and arms that showed rippling muscles. He yelled, "Hi, skinny. How would you like to be ducked?" मुझे बैठे हुए ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी कि वहाँ से एक बहुत ही सख्त और दबंग लड़का आया। उसकी उम्र 18 साल के लगभग थी। उसके सीने पर घने बाल थे। वो जिस्मानी साख्त की एक खूबसूरत मिसाल था। उसकी टांगें और बाजू बहुत ही मजबूत थे। उसने चिल्लाते हुए मुझसे कहा, "ए पतले, तुम किस तरह गोता लगाना पसंद करोगे?" With that, he picked me up and tossed me into the deep into the water. Into the deep end. उसके साथ ही उसने मुझे उठाया और गहरे पानी के सिरे की तरफ तालाब में फेंक दिया। I landed in a sitting position, swallowed water and went at once to the bottom. मैं पानी के अंदर बैठने की हालत में गिरा, पानी को निगल लिया और एकदम पूल के फर्श पर पहुंच गया। I was frightened, but not yet frightened out of my wits. On my way down, I planned. मैं खौफजदा हुआ, लेकिन अभी अपने हवास को कायम रखा। नीचे की तरफ जाते हुए मैंने एक मंसूबा बनाया। When my feet hit the bottom, I would make a big jump, come to the surface, lie flat on it, and paddle to the edge of the pool. जब मेरे पाँव फर्श से टकराएंगे, मैं एक लंबी छलांग लगाकर सतह पर आने की कोशिश करूंगा। पानी की सतह पर सीधे लेट जाऊंगा और पाँव मारते हुए पूल के किनारे पर आऊंगा। It seemed a long way down. Those 9 feet were more like 90, and before I touched bottom, my lungs were ready to burst. मुझे ये एक लंबा फासला मालूम हुआ। वो 9 फुट मुझे 90 फुट से ज़्यादा लगा और फर्श को छूने से पहले ही मेरे फेफड़े फट जाने को तैयार हुए। But when my feet hit bottom, I summoned all my strength and made what I thought was a great spring upwards. लेकिन जब मेरे पाँव फर्श से टकरा गए, मैंने अपनी सारी ताकत को जमा किया और अपने हिसाब से एक लंबी छलांग ऊपर की तरफ लगाई। I imagined I would bob to the surface like a cork. Instead, I came up slowly. मैंने सोचा कि मैं एक कॉर्क की तरह सतह पर आऊंगा। इसके बरक्स में आहिस्ता आहिस्ता ही ऊपर आया। I opened my eyes and saw nothing except but water that had a dirty yellow tinge to it. इसके बरक्स में आहिस्ता आहिस्ता ही ऊपर आया। मैंने अपनी आंखें खोली, लेकिन मुझे पानी के सिवा कुछ भी दिखाई न दिया। पानी भी ऐसा जो कि गंदा और जर्द रंग का था। I grew panicky. I reached up as if to grab a rope, and my hands clutched only at water. I was suffocating. मैंने अपनी आंखें खोली, लेकिन मुझे पानी के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं दिया। पानी भी ऐसा जो कि जर्द और गंदा और जर्द रंग का था। मुझे घबराहट हुई। मैं ऊपर आकर जैसे किसी रस्सी को पकड़ना चाहता था, लेकिन मेरे हाथ से पानी को पकड़ पाए। मेरा दम घुट रहा था। I tried to yell, but no sound came out. Then my eyes and nose came out of the water, but not my mouth. मैंने चीखने की कोशिश की, लेकिन कोई आवाज़ नहीं निकाल सका। मेरी आंखें और नाक पानी से बाहर आए, लेकिन मेरा मुंह पानी के अंदर ही रहा। I flailed at the surface of the water, swallowed and choked. I tried to bring my legs up, but they hung as dead weights, paralyzed and rigid. मैंने पानी की सतह पर अपने हाथ जोर जोर से हिलाए, पानी को निगल लिया और सांस लेने में दुश्वारी महसूस करने लगा। मैंने अपनी टांगें ऊपर लाने की कोशिश की, लेकिन वो एक मुर्दा वजन की तरह लटक रही थी और हरकत करने से कासिर थी और उनमें बहुत ही सख्ती आ गई। A great force was pulling me under. I screamed, but only the water heard me.
I had started on the long journey back to the bottom of the pool. एक बहुत ही शदीद कुव्वत मुझे नीचे खींच रही थी। मैंने चीख मारी, लेकिन मेरी आवाज़ सिर्फ पानी तक महदूद रही। मैं फिर से पूल के फर्श के तक जाने के सफ़र पर चल पड़ा था। I struck at the water as I went down, expending my strength as one in a nightmare fights an irresistible force. जब मैं नीचे की तरफ जा रहा था, मैं अचानक पानी के साथ टकराया। मुझे लगा कि जैसे मैं अपनी तवानाई एक डरावनी ख्वाब में किसी नाकाबिल मदाफत लड़ाई में सर्फ कर रहा था। I had lost all my breath. मेरी सांस फूल गई थी, यानी मैं सांस लेने से कासिर था। My lungs ached, my head throbbed, I was getting dizzy. मेरे फेफड़े में दर्द हो रहा था, मेरा सर दर्द से फट रहा था, मुझे चक्कर आ रहा था। But I remembered the strategy. I would spring from the bottom of the pool and come like a cork to the surface. लेकिन मुझे एक तरीका याद था। मैं पूल के फर्श से उछलूंगा और कारक की तरह सतह पर आऊंगा। I would lie flat on the water, strike out with my arms and thrash with my legs. Then I would get to the edge of the pool and be safe. मैं सतह पर सीधे लेट जाऊंगा, अपनी बाजू फैलाऊंगा और पूरी ताकत से अपनी टांगें टकराऊंगा और पूल के किनारे पर पहुंचकर अपने आप को महफूज करूंगा। Dear students, this was the first part and it is translation in Urdu of our third lesson of Flamingo textbook, Deep Water, written by William O. Douglas. And remember that this story is from the autobiography of William O. Douglas and is taken from O Man and Mountain. I hope you enjoyed the reading and the meaning of this first part in Urdu. तो दूसरे चैप्टर में हम दूसरे लेसन में हम दूसरे वीडियो में हम पेज नंबर 26 से आगे पढ़ना शुरू करेंगे। थैंक यू।